So the first rule is selection of parent carbon chain. Now how we select the PCC? So student, I am going to use the abbreviation PCC in place of parent carbon chain, so do not get confused. There are some priority order. Priority order means सबसे पहले प्रायोरिटी किसे मिलती है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, यानी फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट. नाउ वी विल सी few examples that how to select the parent carbon chain. So for the first case, you can see here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We have a longest chain of how many carbon? 6 carbon. There is no another possibility. You can clearly see if I choose this one, it is 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and both are same. There is no difference. 1, 2, 3, 4. So only this is the possible longest chain. So here we have selected the longest chain as this one. So this is longest chain. Now see, is this methyl group is a part of this chain? No. Is this methyl group is a part of this main chain? No. So these two are substituent. What are they? They are substituent. And when it is substituent, what is the name of CH3? It is methyl. As I told you, na, when we remove one hydrogen from alkane, it is called alkyl. So it is methane. How many hydrogen has been replaced? 1. So it is CH3. So it is methyl. Coming to the next example, student, we can see here how many longest chain carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only one possibility is there. If you're going to choose this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, it is similar to the straight one. So we can select any one. So this is the longest chain. And this is substituent. How many carbons are there? 2. So this substituent name is ethyl. Its name is ethyl क्योंकि दो कार्बन का जो सब वर्ड रूट होता है वो कहता है एथ, and we have removed one hydrogen, so it is ethyl. Coming to the next example, which is the third one. See here, which is a main chain? 1, 2, 3, 4. So this would be the longest chain. And how many substituent? 1 and 2. So these are two substituent here. Coming to the next example, student, we have this longest chain. 1, 2, 3, 4 carbon chain. So we have selected the main chain in the 4 examples. Now see another one which is very important because I have used here the multiple bond. See, now if you are going to choose a straight one, it is 1, 2, 3, 4. And if you are going to use this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have two possibilities, one with the 4 carbon and another with the 6 carbon. So आप कौन से चेन सिलेक्ट करोगे? Obviously आपको लगेगा 6 कार्बन, but when we are taking this 6 carbon chain, is multiple bond is coming in the chain? Double bond? No, it is outside this chain. So what was the priority order, student? पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है, अब फिर मल्टीपल बॉन्ड को करना है, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट को करना है. हमने जो इनिशियली 3 या 4 एग्जाम्पल देखे वहां कोई भी मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप नहीं था. But in this case, we have multiple bond. So our priority is that we should include that multiple bond in the PCC. So the longest chain will be of the 4 carbon with multiple bond in it. So the correct one is this one. Correct. So the reason is chain should contain that PCC chain should have that multiple bond. In 6 carbon, no multiple bonds are there. So which is a main chain? 4 carbon. Now see the next one. We have this functional group. CHO is which functional group? It is aldehyde. Which functional group it is? Aldehyde. Now the priority is कि aldehyde आपका main chain में होना चाहिए. Then multiple bond. So 1, 2, 3, 4. अगर मैं इस मिथाइल को मेन चेन में लेती हूँ तो मल्टीपल बॉन्ड उस मेन चेन का पार्ट नहीं होगा, बट हमें क्या करना है? मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है इफ इट इज प्रेजेंट. सो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन. इज इट क्लियर? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, एंड देन अगर दोनों एब्सेंट है देन वी विल गो फॉर सब्स्टिट्यूएंट एंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो स्टूडेंट, सेकेंड रूल इज लोएस्ट लोकेंट रूल. इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? जिनकी भी हमने प्रायोरिटी दी थी,
यानी कि आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट, इनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। यानी जब हम नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले लोएस्ट आप किसे दोगे? फंक्शनल ग्रुप को, अगर फंक्शनल ग्रुप वहां प्रेजेंट है। अगर वो नहीं है तो लोएस्ट किसे देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो किसे देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल। In the first case, this is the longest chain. Am I correct? Because it contained double bond. So 1, 2, 3, 4. It is a correct numbering. Why? Because double bond को क्या नंबर मिला? 1 नंबर मिला। स्टार्टिंग वाले कार्बन पे ही हम उसे काउंट करेंगे। फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, सो डबल बॉन्ड को कैसा नंबर मिलना चाहिए था? लोएस्ट। सो यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई हुआ। अकॉर्डिंग टू दैट रूल, there is no functional group in this compound, so we have given lowest number to the multiple bond. Coming to the second example, which is very interesting, student. In this case, straight chain is very simple. We have 4 carbon. Now there is one confusion, that we have double bond here and we have one triple bond also. This is double, this is triple. Now point is, if you give one number here, so 1, 2, 3, 4. डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला स्टूडेंट? 1 मिला। एंड ट्रिपल को कौन सा मिला? 3 मिला। इफ यू डू द नंबरिंग फ्रॉम हेयर, आपके ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलेगा? 1 एंड डबल को क्या मिलेगा? 3. सो बोथ साइड द नंबरिंग इज सेम, 1 3 1 3. सो इन दैट सिनेरियो, व्हेन नंबरिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स आर कमिंग सिमेट्रिकल, यानी एक बार इधर से सब्स्टिट्यूएंट 1 3 हो रहा है और दूसरे साइड से भी 1 3 हो रहा है, सो इन दैट सिनेरियो we have to go for the alphabetical order. So out of ene and ine, alphabetically कौन पहले आता है? इन का e और वाइन का y। पहला अल्फाबेट आपको देखना है, तो हमारा अल्फाबेटिकली e पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली e अगर पहले है तो उसी को लोएस्ट नंबर मिलेगा, यानी नीचे वाला नंबरिंग आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर हो गया? सो आपको सिमेट्रिकल कंडीशन है तो आपको क्या देखना है? अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिकली हम उसको सिलेक्ट करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड वन। इन द थर्ड वन स्टूडेंट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, विच इज वेरी सिंपल, इट इज अ स्ट्रेट वन. नाउ if you are doing the numbering, same scenario as the upper one, 1 2 3 4, 1 2 3 4. From both the sides substituents are coming at 2 and 3 position. We'll go for alphabetical. It is B, it is C, bromo and chloro. तो B आपका पहले आता है, so the lower one is a right. आपका bromine को lowest number मिलेगा. Coming to the next example, this is the longest chain student. Now in this case we have to do the numbering. So see here, this Cl and this methyl is substituent, this bromine is substituent. नंबरिंग करते समय मल्टीपल बॉन्ड अगर है तो उसी को लोएस्ट मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं मिलेगा. क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है. सो 1 2 3 4 and 5, this should be the numbering. Now see next example, we have this longest chain. जब भी आपके पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उस कार्बन को मेन चेन का पार्ट आपको बनाना है. नाउ सी, हमेशा किसको लोएस्ट देना है? फंक्शनल ग्रुप को. तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, सो 1 2 3 and 4. जब फंक्शनल ग्रुप होगा और मल्टीपल बॉन्ड भी होगा तो फंक्शनल ग्रुप को ही हमें लोएस्ट नंबर देना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस लॉन्गेस्ट चेन एंड 1 2 3, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल. 1 and 3 दोनों पे ही आपका क्या लगा है? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप. सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द नंबरिंग, वी आर डन विद द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन. नाउ द नेक्स्ट इज नेमिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू नेम राइट. सो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, suffix. So I will write for you once more the prefix, then we have word root, and then we have suffix. Correct? Now first of all we are going to do the naming of alkanes. So this is the longest chain according to alphabetically 1 2 3 4. This should be the numbering. When we are going to write the names, we have to write alphabetically, means we have to follow the format also. First is प्रीफिक्स. सो दीज टू आर प्रीफिक्स. जब भी आपको नेमिंग लिखनी है आपको अल्फाबेटिकली ही लिखना है.
तो सेकंड और आपको उसकी पोजीशन भी बतानी है। तो देखो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, ब्रोमीन, सो वी विल टेल 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा आपका 2 ब्रोमो। देन डैश, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, क्लोरो, इट इज क्लोरो। एंड 4 मेंबर का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, सो इट इज ब्यूटेन। सो आई विल एक्सप्लेन दिस वंस मोर स्टूडेंट, please see. We have to tell the position of all the substituents, all the multiple bonds, all the functional groups which are present. Here we have 2 functional groups and the position is 2 and 3. We will separately write their position as both the substituents are different. Second position पे ब्रोमीन था, तो नंबर और वर्ड के बीच में क्या आएगा, डैश, देन 3 क्लोरो। जब आपका प्रीफिक्स खत्म हो चुका है तो वर्ड रूट आया ब्यूट एंड देन आया 1 डिग्री सफिक्स एन एज देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। सो दिस इज अ नेमिंग। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, वी हैव this one, we have to find the longest chain. Students, see, there are 2 scenarios. If you are selecting this longest chain, correct, how many carbon, 6 carbon, 1 2 3 4 5 6, and how many substituent, we have 1 substituent this and 1 substituent this. Do not count it as a separate. इस बॉन्ड से जितना भी ग्रुप लगा है वो एक ही काउंट होगा, इस बॉन्ड से जो भी ग्रुप लगा है वो एक ही काउंट होगा। सो वी हैव 6 कार्बन्स विद 2 substituent. We can check, is there any other possibilities? Yes, it is 1 2 3 4 5 6. It is also 6 carbon. Now see how many substituents are here, 1 2 3 and 4. So in the second scenario we have 4 substituent. So student, जब भी आपके पास कोई ऐसा कंडीशन हो कि आपके पास सेम कार्बन का चेन बन रहा है और सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो आपको वही चेन सिलेक्ट करना है जहां सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, ज्यादा। सो इफ सेम कार्बन PCC, then select chain with maximum substituent. उसमें substituent क्या होने चाहिए, ज्यादा। So which chain is the right? This one is the right. Correct. Now if you want to write the name, we have done the numbering. We have methyl group, 2 carbon ethyl, 2 carbon ethyl. So how will you write? इथाइल E, मिथाइल M, अल्फाबेटिकली E पहले आएगा तो हमें वही लिखना है। 3 पोजीशन, देखो ये थर्ड कार्बन है, उसी से आपका क्या लगा है, ये इथाइल ग्रुप लगा है। ये 4th पोजीशन है, इसी से आपका क्या लगा है, इथाइल लगा है। सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल है, 5 पे आपका मिथाइल है। तो आप क्या लिखोगे, 3 और 4 पे सेम आपका सब्स्टिट्यूएंट है तो आप एक साथ लिख सकते हो 3,4। अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है तो हम यूज करते हैं डाई। अगर 2 टाइम्स है तो डाई, 3 टाइम्स है तो ट्राई, और 4 टाइम है तो आप क्या यूज करते हो, टेट्रा। सो इट इज 3,4 डाई इथाइल, क्या लिखेंगे, डाई इथाइल। देन 2,5 डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल भी कितनी बार है, 2 बार है। 6 कार्बन का वर्ड रूट हेक्स, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, सो इट इज हेक्सेन। करेक्ट। नाउ the next example we have for alkene. In case of alkene, similarly we have to select the longest chain. We have selected, numbering, double bond को priority मिलेगा, correct. Substituent third position पे है, so we will write it is 3 chloro, word root is but। double bond की position भी हमें बतानी है, किस position पे है, 1 पे, so but 1 in। क्या यहाँ एन आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या यूज होगा, 1 डिग्री, इन यूज होगा। सो दिस इज प्रीफिक्स, वर्ड रूट 1 डिग्री, सफिक्स। करेक्ट। नेक्स्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन स्टूडेंट, सो नंबरिंग you can do from any sides, it is symmetrical। how many word root, but। क्या यहाँ कोई प्रीफिक्स है, नो, सो डायरेक्टली वी विल राइट word root but। how many double bonds are here, 2, 1 पोजीशन पे एंड 3 पोजीशन पे, सो इट इज ब्यूट 1,3। डबल बॉन्ड कितनी बार आया, 2 बार, डाई इन। अब पॉइंट ये है स्टूडेंट, देखो अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड
दो या दो से ज्यादा बार है तो आपको वर्ड रूट के आगे ए ऐड करना है. सो आई एम राइटिंग हियर, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड is 2 times or more than 2 or it is more than 2, then add a after word root. क्या करना है हमें? word root के बाद a को अल्फाबेट को ऐड करना है. so it is buta 1,3 diene. क्लियर हो गया? next we have alkyne. so in case of alkyne we have selected this as a longest chain. am I correct? so 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4. मैंने डबल बॉन्ड को नंबर 1 दिया. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, व्हेन इट इज सिमेट्रिकल वी हैव टू गो अल्फाबेटिकली. अगर आप यहां से करोगे तो 1 2 3 4, तो 1 पे क्या आ रहा है आपका? ट्रिपल, और उधर से 1 को डबल मिल रहा है तो हमें अल्फाबेटिकली जाना है. देयर इज नो प्रीफिक्स, सो वर्ड रूट इज ब्यूट. नाउ फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? इन. फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? इन. नेक्स्ट थर्ड पोजीशन पे क्या है? आइन. सो इट इज ब्यूट 1 इन 3 आइन. अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगी, इस इन के ई को एलिमिनेट करूंगी और मैं नाम क्या लिखूंगी? ब्यूट 1 इन 3 आइन. मैंने ई हटाया. तो जब भी 1 डिग्री सफिक्स के बाद, अगर आपने 1 डिग्री सफिक्स ये लिखा है, इसके बाद ए ई आई ओ यू या y आ जाएगा, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू एलिमिनेट ई. ठीक है, ई को एलिमिनेट करना है. तो मैंने यहां y था तो मैंने ई को एलिमिनेट कर दिया. सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन स्टूडेंट. नाउ इफ यू आर डूइंग द नंबरिंग, इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है एंड डबल बॉन्ड को 4. अगर हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है और आपके ट्रिपल को 5. लोएस्ट क्या है? 1 4. इन को प्रायोरिटी तब देना है जब सिमेट्रिकल कंडीशन है कि डबल को भी 1 मिल पा रहा है आइदर साइड से और ट्रिपल को भी 1. बट अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो लोएस्ट लोकेंट रूल को ही फॉलो करना है. सो 1 4 इज द राइट. हाउ मेनी कार्बन? 6. सो वी विल राइट हेक्स. देन अल्फाबेटिकली आपको लिखना है. इट इज 1 2 3 4. सो इट इज हेक्स 4 इन 1 आइन. मैंने ई एलिमिनेट किया क्योंकि यहाँ पे क्या था? y. सो आई होप आई एम क्लियर. कमिंग टू द हेलो एल्केन्स. In this case, this is the longest chain. Longest chain is of how many carbon? 2. There is no functional group. There is no multiple bond. So substituent जिस कार्बन से जुड़ा है उसे ही लोएस्ट देना है, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, देन वी विल गो फॉर सब्स्टिट्यूएंट. सो सब्स्टिट्यूएंट 1 पोजीशन पे है. Br के लिए क्या यूज करते थे हम? 1 ब्रोमो. 2 कार्बन का है, वर्ड रूट एथ, सिंगल बॉन्ड है एन. सो इट इज 1 ब्रोमो इथेन. Next example we have this one. How many carbon? 3. So it is 1 2 3. Second position पे substituent लगा है. So it is 2. I के लिए क्या यूज करते हैं? आइडो. 3 कार्बन का वर्ड रूट इज prop. All are single. So it is 2 iodopropane. Coming to the next, which is alcohol. How many carbon? 2 carbon. Alcohol. OH is a functional group. तो functional group के कार्बन को 1 देना है. Then 2. वर्ड रूट क्या होगा? एथ. कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन. देन 1 पे OH है एंड OH का जो सफिक्स है वो क्या होता है? ओल. अल्कोहल का सफिक्स क्या है? ओल. तो 1 ओल. मैंने आपको बोला था यहाँ ए ई आई ओ यू या y आएगा तो इस ई को एलिमिनेट कर दोगे. सो इट इज इथेन 1 ओल, या आप इसको इथेनॉल भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? इथेनॉल, क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है अगर आप 1 नहीं लिख रहे हो तो. नेक्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. अब नंबरिंग ऐसे करनी है कि OH को लोएस्ट नंबर मिले. सो इट इज 1 2 3 4 5. अगर आप राइट साइड से करते, यहां से करते तो 1 2 3 एंड 4, और यहाँ लेफ्ट साइड से किया तो 2 मिला. तो कौन सा करेक्ट होगा? 2. कोई प्रीफिक्स नहीं है. सो 5 कार्बन का इट इज पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, 2 पे ओल. मैंने ई ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है. क्यों? क्योंकि आगे क्या आया है? ओ.
कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के केस में जो सफिक्स है वो क्या यूज होता है? अल. इट इज 1 2, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट देना है तो वर्ड रूट क्या होता है? एथ. सिंगल बॉन्ड है एन 1 अल. आप इसको कंबाइन करके भी क्या लिख सकते हो? इथेनल. मैंने ई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आगे क्या था? ए था. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज इंपॉर्टेंट. नंबरिंग 1 2 3 4. वाई सो? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप को 1 देना है. क्या सब्स्टिट्यूएंट है? एकदम है, थर्ड पोजीशन पे. तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे 3 क्लोरो. वर्ड रूट 4 ब्यूट. क्या यहाँ डबल बॉन्ड है तो एन नहीं आएगा. किस पोजीशन पे है? 2 पे है, 2 इन. 1 पे क्या है? CHO, तो उसका सफिक्स क्या है? अल. ए था इसलिए ई एलिमिनेट किया. ब्यूट 2 इन 1 अल. Next we have ketone. So what is the suffix of ketone? It is on. Suffix of ketone is on. देखो how many carbon? We have 4 carbon, 1 2 3 and 4. क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिलना चाहिए, यहां से 2 मिलेगा. वर्ड रूट इज ब्यूट. सो वी विल राइट ब्यूट. सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, एन 2 ओन. मैंने ओ था इसलिए ऑलरेडी ई को एलिमिनेट कर दिया. कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस वन. अगर आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग के समय पे 1 2 3 4 5 6. फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है? 4. यहां से 1 2 3 4 5 6. फंक्शनल ग्रुप को कौन सा मिल रहा है? थर्ड. तो ऊपर वाला करेक्ट है. फंक्शनल इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, एकदम है 5 पोजीशन पे. सो इट इज 5 क्लोरो. हाउ मेनी कार्बन? 6 हेक्स. डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? 1 1 इन. थर्ड पोजीशन पे कीटोन है 3 ओन. सो दिस इज द नेमिंग ऑफ कीटोन. सो we are done with the naming part. Coming to the next topic which is isomers.